This is Chandrapur, India. It's a neglected tribal region steeped in superstition and witchcraft and home to some of the highest poverty rates and lowest literacy rates in all of India. Only 1.9% of the population here identify as Christian. मेरा नाम सैमुअल है। तो उन लोग मुझे चयनित करके या इस गांव में प्रभु की सेवा के लिए भेजे। फिर आसपास भी जाता था, घूमता था, सुसमाचार प्रचार करता था। Almost immediately, Pastor Samuel faced strong opposition. The people here had their own gods and traditions, and the idea of a foreign god being worshipped in this place made many villagers anxious and angry. कि मसीह लोगों को बढ़ने नहीं देना, बढ़ने से हमारा देवभूत यहाँ से भग जाता है, हमारा देवभूत अशुद्ध हो जाता है और हमारे ऊपर कई सारी विपत्तियाँ आएगी तो हम कहाँ जाएंगे। तो हम कई बार बोले हैं कि ठीक है, तो अशुद्ध हो जाता है या देवभूत तुम्हारे निकल जाते हैं तो आओ प्रभु में, प्रभु वो करेगा, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। Yet over the years, his ministry grew as people found that the gospel offered them a hope that their local traditions and gods could not. But the way would continue to be littered with difficulty and doubt and even danger. In one village, 8 Christian families were denied use of the village well. They were denied work in any of the village fields. They were denied ration cards for food, and they were not even allowed to walk on the village roads. तो गांव के लोग देखे और बोले कि यहाँ तो 1 से 2, 2 से 3, अभी 8 परिवार हो गए। किसी न किसी रीति से इनको घर वापसी कराना है, मसीह धर्म को बंद कराना है। यहाँ पर कोई मसीह नहीं होना है, कोई क्रिश्चियन नहीं होना है। क्यों गए उसमें, ऐसा वो लोग बोल रहे थे सरपंच लोग। तो हम वापस आओगे नहीं आओगे, हम वापस नहीं आ जाएंगे, इन लोगों को तो मारना पड़ेगा, तुम लोगों को गला काटना पड़ेगा, ऐसा गला उला काट के तुम लोगों को फेंकेंगे, नहीं तो घर खुड़िया को सबको फेंक के हम तुमको भगा देंगे। तुम मसीह परिवार हो, तुम मसीह परिवार तरफ से तुम लोगों को मिलेगा और तुम्हारा सरकार नहीं है। These families courageously registered a complaint with the police only to find out later their case was never even filed. Today, they reside in their village under an uneasy truce and must still return to Samuel's village to attend church. और एक दूसरी घटना है जो एक गांव में हम लोग एक मसीही विश्वासी परिवार में शाम के समय 7 बजे के आसपास प्रार्थना मीटिंग बैठे थे। तो लोग न हल्ला गुल्ला करते आए। जैसा मैं बंद किया तो वैसे ही दौड़ते अंदर आए, तो घर वालों के साथ, बच्चों के साथ उसकी पत्नी को भी मारे, पूरा रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। सर मुझे यहाँ पर मारे थे, जो अभी भी निशान है, यहाँ पर 8-9 टाँका लगा था और पूरा चेहरा में ब्लीडिंग हो रहा था, पूरा चेहरा खूना खून हो गया था। तो हमको मारपीट करने के बाद वहाँ पर टेबल था, दरी, कुर्सी, बाइबिल, गीत पुस्तक और कुछ सामान था, वो सबको इकट्ठा कर जलाए, माचिस सबको जला दिए। The police were called, but initially they declined to come, saying the village was too far. And at the closest medical clinic later that night, the doctor who saw 6 of these injured believers insisted their wounds were not severe and sent them back home. The following day at a hospital in the city, they were treated for concussions, lacerations requiring stitches, and even several broken bones. Marverke venittar. Så igge sitturiga jirjor nettur pei tagula yumke hatta netturu. Veniyam oniyam pei. E maate matin jo ketsurtan itta markin ittorbo. आजकल नया पैसा इगे इत्तर इरेन मिल्क मत्ता इगे चाई इची चोरा बुंगास मत्ता कोट बात करते अस्पताल कोट तोड़ीगा कोटी में अगर बात कर पट्टी तो सित्तर
मीकिन सरकारी इल्ला थाना इल्ला मीकिन अवकानो ना जगत कोंडे किस मार्टी तो मी वालोत्ती नित. In yet another incident, two pastors and their families watched helplessly as angry mobs descended on their homes. गांव के लोग चिल्लाते हुए आए, डंडा वगैरह पकड़ के वो रास्ता में जो हम डर गए थे और पुलिस वाले उतने ही टाइम आए. पुलिस वाले आए और बोले कि आप लोग यहाँ से दूर चले जाओ नहीं तो आप लोगों को भी मार देंगे करके बोले. हम लोग डर के मारे वहाँ से चले गए. The mobs destroyed the roofs of the homes first, using sticks and rods to knock down the clay tiles. Even today, those broken tiles, now finely crushed, line the ground around the houses and tell the story of what happened here. हर जगह विरोध सताव बहुत बार हुआ है और कभी कभी मैं तो बहुत एकदम निराश उदास हो जाता था और इस सब का सामना मैं अकेला खुद किया हूँ. सच बता रहा हूँ. मेरे माता पिता भाई बहन भी बोले तू काम छोड़ दे नहीं तो दूसरा जगह ट्रांसफ़र करा ले, तेरे को मार्क फेंक देंगे, उधर गोंड माड़िया आदिवासी लोग हैं. लेकिन मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु तेरी क्या इच्छा है, तो क्या चाहता है. तो मैं बोला नहीं साहब मैं रहूँगा, मर भी जाऊँगा यहीं पर रहूँगा बोला मैं. और सच में उस समय पता नहीं कैसा हमारे लोग साथी है, हमारे विश्वासी लोग, और पता नहीं मैं रह गया. डर तो बहुत था, बहुत डर लग रहा था, लेकिन प्रभु सहायता किया और इस रीति से फिर मैं और हम सब मिलके प्रार्थना दुआ करने लगे. प्रभु हिम्मत दिया, साहस दिया, बुद्धि ज्ञान भी दिया और उसी का है शायद कि प्रभु आज काम भी कर रहा है. Samuel and his band of believers here have refused to give up the faith. क्योंकि परमेश्वर बहुत अच्छा है सर. विश्वास किए हैं परमेश्वर को, इसलिए हम नहीं छोड़ेंगे इस धर्म को. पर्बुन बिरसम पर्बुन विश्वास किनमा पर्बुन चाहिँ दलके माथि गला बिरसम म चाहिँ पर्बुन यार्दता कनमा इंडियानमा पर्बुन विश्वास किनमा कि आज के डेट में 14-15 गांव में प्रभु की सेवा चल रही है और बहुत दूर दूर तक, हमारे यहाँ से कम 60-70 किलोमीटर तक है. और अभी फ़िलहाल में पिछले महीने 72 लोगों का बपतिस्मा हुआ और इतना विरोध सताव हो रहा है फिर भी लोग प्रभु में आ रहे हैं. तो कभी कभी अच्छा लगता है कि अगर मैं छोड़ के जाता तो इनको प्रभु का वचन कौन सुनाता, इनका जीवन कैसे बचता, इन लोग कैसे जानते. International Christian Concern supports Samuel and many like him so that these brothers and sisters might continue to be agents of transformation in the hard places of our world. And when you stand with us, you are also standing with them. धन्यवाद कि तुम और के माक बात बेनरे बात की बर और माकिन निकले लड़ी बात सामान्य तरह चुटिन माक agama dampaya Makin ne kaitor bo mak batay benditor savuritor malay medlayven mirven makin partner किसिमर. मैं धन्यवाद करता हूँ आप लोगों को लिए और हमारे मसीह परिवार के लिए. तो हमको चावल अपने जो दिए हो, हम रहने के लिए, खाने के लिए चावल दाल जो कपड़ा लता दिए हो, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर आप लोगों के लिए जो हमको भी अच्छे से प्रार्थना करिए आगे. मैं आईसीसी का धन्यवाद देता हूँ जो हम लोग गांव में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, हमको ढूंढते हुए हमारे घर तक पहुँचे और हमको आर्थिक सहायता, सामान की सहायता देखकर हमको एक उत्साह दिए, हिम्मत दी. इससे हमको बहुत खुशी हुई, हमारा विश्वास बढ़ा. इसीलिए मैं आईसीसी का हृदय से धन्यवाद देता हूँ.